Good afternoon, everyone. This is Dr. Mamta from Government College, Faridabad. So now, today is Saturday, so we just have to be revise our topics which we have done out in our last classes. Okay. So what is the first topic which we have done out in the previous classes? That is the set. What is the set? A set is a well-defined collection of distinct element. Okay, for example, if we can take it out, the natural set of natural number second set of integers, number third set of rational number, set of irrational number, and set of real number, etc. So many numbers we can take it out over there. Okay, some definitions related with the sets we just have to be take it out. First thing is a finite set. What is a finite set? If the number of elements of a set are finite, that's meaning we can say it would called a finite set. Infinite set. What is a set which is infinite? So whenever we are taking out the infinite number of elements, means this set is said to be a infinite set. So many examples we can take it out, like if we have a set S is equals to 1 2 3 and 4 5, so these are 1 2 3 4 and 5 number are finite, that's meaning this is a finite set. If we are taking out the set of integers, it would be the infinite set. Okay, now we are just talking about the intervals की बात करते हैं, तो we have to be divide them into the closed and open set both. What is the closed set and what is the open set? The figure is given here. So first of all, open set की बात करते हैं. What is the open set? So in an open set, what we have to turn out, we have to be take it out only between points. If we have 2 points A and B, A is less than B, then between the A and B we have so many numbers, then we can say it would contained in open interval. If we are talking about the closed interval, that's meaning we have to be include A and B both elements, means A और B दोनों लेने पड़ेंगे और इसके बीच के सारे elements पे we have to be take it out in a open closed interval. Okay, now सबसेट की बात करते हैं. A and B are the two set and such that इस तरह से है कि every element of A is also be the element of B, that's meaning we can say A would contained in B. तो सारे के सारे A के एलिमेंट अगर B में लाई करते हैं, that's meaning we can say it would called a subset. Okay, बाउंडेड above सेट की बात करते हैं, तो बाउंडेड above सेट का मतलब है कि ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, बाउंड्री मिल जाएगी, उस बाउंड्री से वी कैन नॉट बी गेट इट आउटसाइड. ठीक है, let S be the non-empty subset of real numbers and S is said to be the bounded above कहलाता है if there exists a real number k1 and such that x which is less than equals k1. Okay, then this k1 is said to be the upper bound. इसको हम upper bound बोलेंगे. आगे देखिए क्या कहता है. if we have k1 एज अ अपर बाउंड, तो k2 भी वहाँ पर अपर बाउंड होगी, k3 भी होगी, k4 भी होगी, एंड सो ऑन. सो मैनी नंबर्स आर देयर एज अ अपर, so many numbers are there as a upper bound, but we have to be take it out a least upper bound over there. Okay, तो least upper bound हमारे पास k1 होगी, तो that's why we have to be take it out that. वो कहता है सेट जो है वो जो बाउंडेड above है, याद रखना infinite number of upper bounds रखेगा. now we have to be talk about the another topic, that is the unbounded above set. तो unbounded above set की अगर मैं बात करती हूँ, तो a non empty subset S of the real number is said to be unbounded whenever we are not getting any point such that, इस तरह का कोई पॉइंट मुझे ना मिले कि फॉर ऑल एक्स विच आर लेस देन इक्वल्स के, कि सारे के सारे एक्स जो एस को बिलोंग करते हैं क्या हों, इससे छोटे हों या इसके बराबर हों. इलस्ट्रेशंस आर गिवन हियर, वी जस्ट हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. बाउंडेड ब्लो सेट की बात करते हैं. व्हाट इज द बाउंडेड ब्लो? लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन वी कैन से दिस इज बाउंडेड ब्लो. और यू कैन से इफ वी हैव अ लोअर बाउंड, है ना, अगर हमारे पास यहाँ पर लोअर बाउंड है एंड फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू एस, अगर सारे के सारे पॉइंट्स जो कि एस को बिलोंग करते हैं, इससे क्या हो भाई, ग्रेटर हो, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स होना चाहिए k1, दैट्स मीनिंग वी कैन से इट वुड कॉल्ड अ बाउंडेड ब्लो सेट. ओके, वी कैन से देर आर इनफाइनाइटली नंबर्स एज अ ब्लो बाउंड्री, है ना, जैसे वहाँ आपके पास में थे, सिमिलर यहाँ पर भी होंगे, जैसे k1 k2 एंड k3 एंड सो ऑन. सो मैनी पॉइंट्स वी कैन गेट इट आउट देयर, बट वी हैव टू बी टेक इट आउट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज अ लोअर बाउंड. नाउ अनबाउंडेड ब्लो की बात करते हैं. तो अनबाउंडेड ब्लो क्या कहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी आपके पास सबसेट है एस जो आर का है, इस सेट टू भी आपका अनबाउंडेड कहलाता है. कब कहलाता है? व्हेनेवर वी आर नॉट गेटिंग आउट द पॉइंट के, इस तरह का कोई पॉइंट मुझे ना मिले कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाए किसके भाई, के फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू एस. इलस्ट्रेशंस वी जस्ट हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. नाउ बाउंडेड सेट की बात करते हैं. व्हाट इज द बाउंडेड सेट? तो हियर वी न्यू इट वेरी वेल, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस विच इज बिलोंग्स टू आर
इज सेट टू बी आ बाउंडेड कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट, वहाँ पे 2 पॉइंट से मेरे पास एक पॉइंट है K1, एक पॉइंट मेरे पास K2 है, एंड सच दैट इस तरह से है कि x विच आर बिलोंग्स टू एस ऑल द वैल्यूज ऑफ x लाई बिटवीन K1 टू K2, बिकॉज हमारी K क्या है यहाँ पे लोअर बाउंड्री है और K2 क्या है यहाँ पर हमारी अपर बाउंड्री है, तो सारे x जो है K1 से लेकर K2 के बीच में ही लाई करने चाहिए. देन वी कैन से दिस सेट इज सेट टू बी आ बाउंडेड सेट. ओके, अनबाउंडेड सेट की बात करें तो अनबाउंडेड सेट में हम क्या कहेंगे कि वी डोंट हैव K1 एंड K2, हमारे पास K1 भी ना हो K2 भी ना हो या इधर इनमें से एक ना हो, देन वी कैन से दिस सेट इज सेट टू बी आ अनबाउंडेड सेट. Illustrations are given here. We already discussed in the previous classes. We are just going to revision today. ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो अगर एस मेरे पास नॉन एम्प्टी कोई भी एलिमेंट है ऑफ रियल्स का, आ रियल नंबर के इज सेट टू बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सेट एस इफ वी कैन से कि दिस इज अ ग्रेटर एलिमेंट इन ऑल द एलिमेंट विच आर लाई इन द सेट. अगर सेट के सारे एलिमेंट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट. ओके, लीस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो लीस्ट एलिमेंट क्या होता है? एज सच लीस्ट एलिमेंट वो होता है जो सारे एलिमेंट्स में सबसे छोटा सेट हो. फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक लेंगे तो 1 लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा और 10 हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा. नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट द लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम. चलिए, लीस्ट अपर बाउंड के लिए 2 कंडीशन वो फॉलो करना चाहिए. तो एस फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी होना चाहिए और वुड बी कंटेन्ड इन आर में कंटेन्ड होना चाहिए. देन वी कैन से यू इज कॉल्ड अ लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्या करे भाई, अपर बाउंड होना चाहिए फर्स्टली तो, एंड सेकेंडली अगर कोई और अपर बाउंड है तो वो क्या हो, इससे छोटी होनी चाहिए, है ना. यू इज लेस देन इक्वल्स होना चाहिए यू डैश. इन अदर वर्ड वी कैन से कि जो हमारी लीस्ट अपर बाउंड है, जितनी भी अपर बाउंड है उनमें से हमें क्या लेनी होगी, जो लीस्ट होगी वी हैव टू बी टेक इट आउट दैट. इसमें कुछ इन्होंने यहाँ पे यूनिकनेस, सुप्रीमम और कुछ थ्योरम्स गिवन की हुई हैं. ये मैं ऑलरेडी आपको सारी समझा चुकी हूँ. यू जस्ट हैव टू बी रिकॉल दैम. उनको आपको एक बार पढ़ना है. कोई बात नहीं समझ में आई है देन यू कैन आस्क. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की या इन्फिमम की बात करते तो डेफिनेटली इन्फिमम की अगर मैं बात करूँगी तो ये भी 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोअर बाउंड होना चाहिए एस का. सेकंड ऑफ ऑल एल डैश, अगर कोई अदर लोअर बाउंड है एस की तो एल कैसा होना चाहिए, इज अ ग्रेटर देन और इक्वल्स एल डैश होना चाहिए. इन अदर वर्ड वी कैन से द ग्रेटेस्ट जो भी आपके पास में वैल्यू होगी ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स इज सेट टू बी द इन्फिमम, वो आपकी इन्फिमम कहलाएगी. नोट इज गिवन हियर, वी जस्ट हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स आर देयर विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लासेस टू. So having any doubt then you can ask. Now I am just going to the completeness axiom. So if you have any doubt then you can write down in a chat box too. Now completeness axiom we are just talking about every non-empty subset of reals. कोई भी अगर आप रियल नंबर्स का क्या ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं विच इज़ बाउंडेड एबव, जो कि बाउंडेड एबव है, देन वो क्या रखेगा भाई, वो एक ऐसा नंबर रखेगा वहाँ पे जो इसके सुप्रीमम का काम करेगा. ठीक है, तो इट हैज़ आ नंबर, वहाँ पर उसका एक ऐसा नंबर होगा जो इसके सुप्रीमम का काम करेगा. ओके, तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द अदर पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास कंप्लीटनेस के बाद में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ प्रीवियस क्लासेस, और इसका प्रूफ भी हमने 2-3 बार किया हुआ है. ठीक है, नाउ आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स क्या होती है, क्या कहता है स्टेटमेंट, वो ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में आपसे. यू जस्ट हैव टू बी स्टेट एंड देन प्रूफ. तो व्हाट यू हैव टू डन आउट, यू जस्ट हैव टू बी डू अ थिंग कि यू जस्ट हैव टू बी रिकॉल अ स्टेटमेंट इन योर माइंड. व्हाट इज अ स्टेटमेंट, इफ वी हैव 2 नंबर्स एक्स एंड वाई, ओके, देन दोनों रियल नंबर हैं और पॉजिटिव है. फर्स्ट थिंग, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन एंड सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई. तो एन एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, ग्रेटर देन होगी वाई से. प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं. एक इंपॉर्टेंट थ्योरम विच वी हैव टू बी यूज इन द नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ कि एनी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, वहाँ पे एक ऐसा यूनिक इंटीजर होगा कि एक्स लाई बिटवीन टू जेड प्लस 1 और इसकी वैल्यू जेड के इक्वल भी हो सकती है. Again, between the 2 distinct real numbers, there are infinitely many rational numbers and irrational numbers. The statement you just have to be retained in your mind. These all are statement very important, and we just have to be recall them in our mind every week. Because of what, every week revision is very important. Okay, some examples are given here. Okay, so examples we just have done out in our last classes, so there is no need to do them. Now I am just moving to the next exercise 1.1 already have done out.
ओके, नेबरहुड की बात करते हैं. व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन. आ सेट एस विच इज द सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी द नेबरहुड. ठीक है, वो उसका नेबरहुड कहलाता है. कब कहलाता है? वेन एवर पी विच इज बिलोंग्स टू आर, इफ़ वी आर गेटिंग आउट द ओपन इंटरवल ऑफ पी. अगर पी का मैं ओपन इंटरवल बनाऊंगी तो डेफिनेटली आई नीड टू बी अ एप्सिलॉन. हमें एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ेगी. और एप्सिलॉन हमारा क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है. वेन एवर वी आर जस्ट गेटिंग आउट द पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन, देन वी कैन से पी विच इज बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन ऑलवेज कंटेन्ड इन एस. वो एस में कंटेन करना चाहिए. दैट्स मीनिंग वी कैन से इट वुड कॉल द नेबरहुड. नेबरहुड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वी जस्ट हैव डन आउट इन द लास्ट क्लासेस में हमने सारे एग्जांपल्स किए हैं. डिलीटेड नेबरहुड की बात करें, नाम से क्लियर है कि नेबरहुड में से इटसेल्फ जिसका आप नेबरहुड बना रहे हैं उसी पॉइंट को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, यानी हटा देंगे. देन वी कैन से इट वुड कॉल आर डिलीटेड नेबरहुड. ओके, इसके बाद सम थ्योरम्स विच वी हैव डन आउट ऑफ प्रीवियस क्लासेस. इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स. अगर क्या है? ए जो है किसी भी पॉइंट एक्स का नेबरहुड है, देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट. और ऐसे इंटीरियर पॉइंट का अगर मैं एक सेट बनाती हूँ दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर सेट. ओके, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. इसके बाद देखिए ओपन सेट के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें जो है वो नेबरहुड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो नेबरहुड हमने अभी अभी रिवाइज किया है. क्या कहता है? देखिए ओपन सेट ए सेट एस विच इज़ कंटेन्ड इन आर इज सेट टू बी द ओपन सेट कहलाता है इफ़ इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ऑल ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. यानी अपने सारे पॉइंट्स के अगर ये नेबरहुड रखता है देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड द ओपन सेट, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो so many examples are there which we have discussed in the last class. Some theorems are also there, ऑलरेडी हैव टॉक्ड. ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स टुडे. सारे के सारे हम टॉपिक आज रिवाइज करेंगे. सो दैट नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द क्लोज सेट. ओके, क्लोज सेट क्या होता है? लेट ए बी द, अगर ए कोई भी आपके पास में सबसेट है आर का, देन वी हैव टू बी शो, अगर मुझे ये दिखाना है कि ये क्लोज्ड है तो आई जस्ट हैव टू बी शो दिस. हमें ये दिखाना होगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए शुड बी ओपन. कि इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर में से ए को क्या कर दूँ मैं? माइनस कर दूँगी ए को, देन वी विल गेट इट आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट वुड बी ओपन. अगर ये ओपन है तो हम कह सकते हैं ये इटसेल्फ कैसा हो जाएगा? आपका क्लोज्ड हो जाएगा. ओके, इस पर भी कुछ थ्योरम्स गिवन की हुई हैं भाई. कुछ ओपन पे गिवन की हुई हैं, कुछ इन्होंने जो है क्लोज्ड पर थ्योरम गिवन की हुई हैं. और एग्जांपल्स विच वी हैव डन आउट इन लास्ट क्लासेस. एक्सरसाइज 1.2 हमने अनसॉल्व कर ली है कंप्लीट. ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. अदरवाइज आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स वुड बी देयर एक्सेप्ट अ इटसेल्फ पॉइंट. उसको छोड़ करके वहाँ पे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. आ रियल नंबर पी इज सेट टू बी का लिमिट पॉइंट कहलाता है. और यू कैन से द एक्युमुलेशन पॉइंट कहलाता है वेन एवर कि अगर ये इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेंस एटलीस्ट वन पॉइंट अदर देन पी. अगर पी को छोड़ करके उसके पास और पॉइंट्स होते हैं अगर एक है, दैट्स मीनिंग वी कैन से इट वुड कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट. ओके, ऑल एग्जाम्पल्स वी जस्ट हैव डन आउट. डराइव सेट की बात करते हैं. व्हाट इज़ द डराइव सेट? तो डराइव सेट में हमें क्या करना है? सारे के सारे लिमिट पॉइंट उठाने हैं और उनका एक कलेक्शन करना है. दैट कलेक्शन करके जो सेट बनेगा दिस सेट इज सेट टू बी अ डराइव सेट. उसको हम डराइव सेट कहेंगे. आइसोलेटेड सेट कौन सा होता है? विच इज़ नॉट एन लिमिट पॉइंट इज सेट टू बी द आइसोलेटेड पॉइंट. वो आइसोलेटेड हो जाएगा. एड्रेंट की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली एड्रेंट में हम क्या करेंगे? वहाँ पर लिमिट पॉइंट में हम अदर देन पी लेते हैं, यहाँ पर इटसेल्फ पी भी ले सकते हैं. देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड द एड्रेंट पॉइंट. तो ये आपका एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा. क्लोजर ऑफ अ सेट डेफिनेशन आपको पता ही है कि अगर कोई भी सेट ए है मेरे पास, उसका क्लोजर मुझे निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए वी हैव टू बी टेक इट आउट एंड द डराइव सेट, उसका डराइव सेट लें और इटसेल्फ सेट ए ले लें और दोनों को क्या कर दें? हम कंबाइन कर दें, यानी यूनियन कर दें. दैट्स मीनिंग वी कैन गेट इट आउट द क्लोजर सेट. तो हमें वहाँ पर क्लोजर सेट मिल जाएगा. ओके, तो क्लोजर सेट की बहुत सारी यहाँ पे थ्योरम्स हैं विच वी हैव डन आउट इन द लास्ट क्लासेस. हमने लास्ट क्लासेस में ये थ्योरम्स भी कर ली हैं सारी की सारी. ओके, तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग. क्लोजर सेट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं आपकी, वो सॉरी थ्योरम्स हैं यहाँ पर. थ्योरम्स विच यू हैव टू बी डन आउट एट होम. संडे है कल तो दैट्स वाई यू जस्ट हैव टू बी कंप्लीट योर पेंडिंग होमवर्क. आप सारा पेंडिंग होमवर्क कंप्लीट कर लोगे और उसमें जो भी डाउट्स होंगे यू जस्ट हैव टू बी सेंड टू मी. आप मुझे भेजोगे ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप. ओके,
तो एक्सरसाइज 1.3 वी जस्ट हैव डिस्कस्ड इन आर लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह जाता है कॉम्पैक्ट सेट एंड अदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, है ना। कवर क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कवर, हीन वोरल प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज पॉइंट्स वी जस्ट हैव टू बी कवर अप इन आर नेक्स्ट क्लास, ओके। अगर हमारी जो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, अब उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें ये पॉइंट्स है जो मैं कवर अप करूँगी। कॉम्पैक्ट सेट हो गया हमारा, हीन वोरल थ्योरम हो गई, कवर हो गया, ओपन कवर हो गया एंड सो ऑन। तो दीज पॉइंट्स वी हैव टू बी कवर अप, सो डोंट मिस योर क्लास, ओके। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू end up the class. So if you have any doubt, then you can send to me on Google Classroom also, and in fact your WhatsApp group, okay. So I'm just going to end up the meeting. Have a nice day beta and take care. Bye bye.